Good morning, dear students. Welcome back to the next class of BSM. So, in our previous class, we have discussed about LPG, or we can say the new economic policy. So, new economic policy, which was formed in the year 1991. So, the LPG, the most important factor. What does it mean? LPG. In our previous class, we are briefly discussing about all these three. LPG. L stands for liberalization. P stands for privatization. G stands for globalization. As the three names suggest, L stands for liberalization, P stands for privatization, and G stands for globalization. What does it mean, liberalization? Liberalization means freeing the economy from the license system. As we had already discussed, before the NEP, in Indian system, if a person wants to start a business, then he has to maintain or he has to do a lot of licensing so that he can start a business. So liberalization means freeing the economy from the license system. पहले जो बहुत सारे लाइसेंस सिस्टम थे उसको फ्री करना, कुछ जो प्रोसेस था उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. Then the second one, that is privatization. What does it mean? Privatization means increasing the role of private sector, reducing the role of public sector. तो गवर्नमेंट का जो रोल है बिजनेस में, गवर्नमेंट का जो रोल है एनवायरमेंट में, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करेंगे. प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको इंक्रीज करेंगे, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको डिक्रीज करेंगे. वो वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. देन द थर्ड वन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो एक कंट्री का जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. दैट मीन्स देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ बोथ इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट. तो पहले क्या होता था, मतलब एक कंट्री का बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे दूसरे कंट्री के साथ डील करने से पहले. तो उसको वो जो प्रोसेस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत ही दिक्कत हो रहा था. इसके लिए क्या किया गया? देयर इज अ new introduction of globalization. That means a person can easily import goods from other countries and also export goods to outside countries. So all these three are very important: LPG, liberalization, privatization, and globalization. These three are the major changes in new economic policy 1991. Okay. So in this class we are going to discuss the impact of new economic policy. जो मेजर चेंजेस हुआ गवर्नमेंट का, जो पॉलिसी में चेंजेस हुआ उसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था इंडियन मार्केट में, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे. So the point is impact of changes in government policy. As we know, the new economic policy, new education policy was introduced in the year 1991. So after that, what are the major changes are occurred in Indian market? So the first one, ease in entering business. So as the first point, that is ease in entering business. Ease का मतलब क्या होता है? Ease means easy. Easy in entering business. एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस था, that process becomes easy after declaring the NEP. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब स्टार्ट हो गया, बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये किसके साथ रिलेटेड है? लिबरलाइजेशन के साथ.
when the government declared liberalization, at that time there is the license system was the main problem at that particular time, because a person has to do many formalities before starting a business. So ease in entering business, that means with the help of NEP the लाइसेंस सिस्टम वाज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट. पहले मतलब बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होता था. जब एनईपी हो गया, जो मतलब अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, अननेसेसरी रेगुलेशंस था, उसको हम लोग ने रिमूव कर दिया. तो ताकि क्या होगा, एक पर्सन इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा. ठीक है. सो इज इन एंटरिंग बिजनेस, एक पर्सन इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा आफ्टर एनईपी. नंबर सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन कंपटीशन. कंपटीशन मार्केट में क्या हो गया, कंपटीशन ज्यादा हो गया, कंपटीशन में इंक्रीज हो गया. क्यों इंडियन मार्केट में कंपटीशन में इंक्रीज हुआ? देखो पहले बात क्या था, बिफोर एनईपी जो इंडिया का पोजीशन था, बेसिकली आउटसाइड कंपनीज, आउटसाइड बिजनेसमैन आर नॉट अलाउड टू डू देयर बिजनेस इन इंडिया. बट जब एनईपी डिक्लेयर हो गया, एनईपी जब हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डिफरेंट एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे, उसके बाद उन लोगों ने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया. तो इंडियन मार्केट में जो पहले द एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हु आर डूइंग देयर बिजनेस इन इंडिया, नाउ दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन कंपटीशन मोड विद द एमएनसीज. आज वी ऑल नो द एमएनसीज मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, उनका प्रोडक्शन का मेथड, उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी, ये सारी चीज बहुत ही अच्छा होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन किसके बीच में हो गया? तो पहला बात तो ये है कि डिफरेंट एमएनसीज आर केम टू इंडिया. अभी जैसे कि आप लोग एक मोबाइल खरीदने जाएंगे, तो मोबाइल का जो शॉप है उसमें नियरली अबाउट 10 to 15 वेराइटीज हमको मिल जाएगा. या फिर कोई फ्रिज या फिर कोई टेलीविजन अगर खरीदने जाएंगे, तो वहाँ पे हमको बहुत सारे वेराइटीज मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये इसलिए ये जो कंपटीशन हो गया अभी मार्केट में, ये कंपटीशन कब से शुरू हुआ? आफ्टर एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब हो गया, उसके बाद कंपटीशन में ज्यादा इंक्रीज हो गया. फर्स्ट का कंपटीशन हो गया एमएनसी का, एमएनसी के साथ. दूसरे कंपटीशन हो गया एमएनसी के जो एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर थे वो हमारे कंट्री में, उनके साथ भी हो गया. सो द एमएनसीज आर ट्राइंग टू डू ए मोनोपोली मार्केट. अभी जैसे कि मार्केट में जिलेट का ब्लेड, तो जिलेट मतलब अपना एक मोनोपोली मार्केट में करके रखा है अभी तक. या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के केस में थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला एंड थम्स अप जो है, ये इनका मतलब मोनोपोली अभी चल रहा है मार्केट में. ठीक है. सो एमएनसीज आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू ए मोनोपोली मार्केट सो दैट they are only exist in the market, so that they try to, जो मतलब एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम वो लोग क्या करते हैं, उनका मोनोपोली क्रिएट करते हैं और उनको लाके हम अपने बिजनेस में ऐड कर देते हैं. उनका बिजनेस एक तरह से बंद कर देते हैं ताकि क्या होगा, मार्केट में इनका मोनोपोली क्रिएट हो पाएगा. ठीक है. तो ये वाला जो पॉइंट है इंक्रीज इन कंपटीशन. सो द थर्ड पॉइंट, दैट इज rapidly change in the third point, that is rapidly change in technological environment. So here what is it suggests, rapidly means quickly change in technological environment. That means before the new economic policy, इंडियन मार्केट क्या था, एक तरह से मोनोपोली मार्केट था. वहां पे कोई आउटसाइड बिजनेसमैन नहीं था, कोई एमएनसी नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो जो प्रोड्यूसर था वो प्रोड्यूसर अपने हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करता था, फिर उसको बेचता था. लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मार्केट में डिफरेंट एमएनसीज केम. सो एमएनसी का मेन मोटिव क्या होता है, दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट ए रीजनेबल प्राइस. दे आर ट्राइंग टू कैप्चर more and more customers in their business. So that's why there is a need for technological environment. What does it mean, technological environment? Technology means as every businessman wants to use the latest technology in their business. So जो मतलब मार्केट में बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको लाके बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा.
जो इंडियन मार्केट में बिजनेसमैन थे, if they are able to adjust as per the requirement, as per the situation, if they are able to add the new technology in their production method, they are exist in the market. If they are not able to make competition with the MNCs, then in that case they face closure. Okay, so rapidly change in technological environment, that means as the MNCs were came to India, so that's why there is a need for technological environment, technological changes. The businessman has to adopt the best method in their production and in their choosing the best product. Okay, so then the fourth point, the fourth point, that is more demanding customers. So कस्टमर का अभी हम लोग जो सोसाइटी में चल रहे हैं, अभी जो मतलब इंडियन मार्केट का सिचुएशन है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मोर डिमांडिंग हो रहे हैं. As we know, human needs are unsatisfied. So the point is, after the introduction of new economic policy, after LPG, liberalization, privatization, globalization, the customers were more demanding. That means अभी हम लोग जैसे मार्केट में जा रहे हैं कोई कार खरीदने के लिए, तो कार के शोरूम में हमारे पास 5-6 ऑप्शन है, नियरली अबाउट 10 ऑप्शन है. तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं हमारा जो प्राइस है उसमें कौन सा वाला प्रोडक्ट हमको इफेक्टिव होगा. या फिर कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, हमारे बजट के हिसाब से कौन सा वाला फोन लेने से हमको ज्यादा इफेक्टिव होगा. तो ये वाला जो पॉइंट है हम लोग चूज करते हैं. अगर मतलब वो वाला ऑप्शन ही नहीं होता, तो बिफोर एनईपी, प्रायर एनईपी से पहले क्या था, एनईपी से पहले कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, 1-2 प्रोडक्ट होता था मार्केट में, तो कस्टमर को आइदर वो लोग परचेस करेंगे तो वही प्रोडक्ट को परचेस करेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे. जैसे कि मतलब टीवी में 1-2 कंपनी था इंडिया का, वही पर्टिकुलर टीवी मिल रहा था. अगर मतलब किसी को चाहिए तो वो वाला टीवी लेगा या फिर नहीं लेगा. लेकिन अभी जो मतलब मार्केट में है, अभी हम लोग जाएंगे टीवी खरीदने के लिए, तो टीवी के दुकान में नियरली अबाउट 10 to 15 ब्रांड्स के टीवी होंगे. तो उनमें से हमको चूज करना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा वाला ब्रांड को प्रीफर करेंगे. ठीक है. सो एनईपी से पहले क्या था, कस्टमर्स वर नॉट डिमांडेड, कस्टमर्स हैव टू एडजस्ट एज पर द प्रोड्यूसर. बट अभी क्या हो गया, कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग बिकॉज as there is availability of more than one product, more than one variety in the market, so that's why the customers are demanding more and more. Okay, so this is the fourth point. So the fourth point, after completion of the fourth point, the fifth point is fifth point, that is new marketing strategy. न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होता है, टेक्निक. तो यहाँ पे आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद मार्केट में एक नया टेक्निक देखने के लिए मिला. तो क्या था वो टेक्निक ये है कि पहले क्या होता था मार्केट में, सेलिंग कॉन्सेप्ट चल रहा था मार्केट में. उसके बाद जब एनईपी स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ गया. तो क्या होता है ये सेलिंग कॉन्सेप्ट और क्या होता है ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन मतलब क्या होता है, पहले द प्रोड्यूसर हैज टू प्रोड्यूस द गुड्स, देन आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स दे आर गोइंग नियर द कस्टमर्स इन ऑर्डर टू बाय देयर, इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट. पहले प्रोड्यूसर अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर देता है, उसके बाद वो गुड्स को लेके कस्टमर के पास जाता है कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदो बोलिए. लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट. लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, द प्रोड्यूसर हैज टू मेक एन एनालिसिस और मेक ए रिसर्च अबाउट द नीड एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर का जो नीड होता है, डिमांड होता है, पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बेसिस पे हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे. कस्टमर के नीड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो ये वाला जो चेंज हो गया, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में प्रोड्यूसर का चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ, पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट था, अभी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया. सो मार्केटिंग, इन केस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग मोर प्रायोरिटी टू द नीड और डिमांड ऑफ द
कस्टमर। पहले प्रोड्यूसर को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे, ठीक है। Then the sixth one, so the sixth point, so the sixth point, that is emphasis on HRD. So what does it mean HRD? HRD stands for Human Resource Development. तो पहले क्या होता था, मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं था। बिफोर एनईपी देयर आर नो कंपटीटर्स इन द मार्केट एंड वन कैन इजीली ग्रो देयर बिजनेस इन ए मोनोपोली मार्केट। बट आफ्टर एनईपी, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गया 1991 में, तब क्या हो गया, मार्केट में डिफरेंट कंपटीटर्स आर अवेलेबल, एमएनसीज आर एंटरिंग टू डिफरेंट कंट्रीज इन ऑर्डर टू ग्रोइंग देयर बिजनेस। तो वहां पे क्या हो गया, द मेन फोकस इज गिवन ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। What does it mean? Human resource development means here the point says that the MNCs are giving more focus on the development of workers. तो वर्कर का जो, क्योंकि हम लोगों को पता है द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज और बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय अच्छे हैं तो बिजनेस में सक्सेस ऑटोमेटिकली होगा, गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सारे बिजनेस का मेन मोटिव क्या हो गया, दे आर गिविंग मोर प्रायोरिटाइज टू इम्प्रूव द HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने फोकस किया। तो कैसे इम्प्रूव किया गया, दे आर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स सो दैट दे कैन इजीली अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और एनी टाइप ऑफ टास्क। ओके, सो उन लोगों का प्रॉपर सिलेक्शन किया गया, प्रॉपर सिलेक्शन के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो लोग अपना काम ठीक से कर पाएंगे। And particularly the MNCs are having the quality employees. Quality employees means they are having the right employees for right job. So the existing companies or existing producers who are available in India, they are also make a competition with the MNCs. So that's why they are trying to improve their quality of the employees. एम्प्लॉय लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उनका क्वालिटी का नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे ताकि वो क्या कर पाएंगे, काम ठीक से कर पाएंगे। इफ दे आर नॉट एबल टू डू द टास्क इन राइट टाइम, देन द बिजनेस मे नॉट एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, सो दैट्स व्हाई द मोर प्रायोरिटी और एम्फेसिस गिवन ऑन HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड द सेवेंथ पॉइंट, thrust on export. Thrust on export means, thrust का मतलब क्या होता है, want more and more, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे thrust on export का मतलब क्या होता है, every organization are trying to make more and more export in their goods. जो भी गुड्स में, जो भी प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एमएनसी हो चाहे वो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर हो, उन लोगों का मेन मोटिव क्या हो गया, दे आर ट्राइंग टू डू मोर एंड मोर exporting the goods to outside countries. As we all know, if we are exporting the goods to other countries, then we are able to earning foreign currencies from that. Okay. So in order to earn foreign currencies, every businessman wants to depending on more and more on export. Even the MNCs are set their plants, manufacturing units in India, and after producing the goods or after meeting the requirement of Indian people, they are exporting those goods to the nearer countries. जैसे कि मतलब इंडिया में गुड्स का उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, अभी जैसे कि कोको कोला थम्स अप है, ठीक है, तो उन लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई में है, तो वहां पे वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस होने के बाद वो फिर से आफ्टर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पीपल, दे आर सेंडिंग और एक्सपोर्टिंग दोज गुड्स टू द आउटसाइड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां पे वो लोग गुड्स को सेंड कर रहे हैं, जो मतलब आउटसाइड नियरेस्ट कंट्रीज है वहां
वहाँ पे भी वो लोग सेंड करें, ताकि क्या हो गया, एमएनसीज कंपनी भी प्रॉफिट मिल रहा है उनको, और जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है वहाँ से भी इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडिया को भी प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर more depending on export. They are wanting more and more export of the goods. Okay. Then the last one, that is the role of public sector. Then the role of public sector. Public sector means मतलब क्या होता है? Public sectors are the organizations or the enterprise which were owned and managed by the government. The maximum share, that is 51% of those companies are held by the either state government or central government or by both. Okay. And the private sectors means private persons. So here the point is change of the role of public sector. Public sector का जो role था, पहले क्या होता था? Before 1991, most of the sectors were reserved by the government. That means most of the sectors, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये मतलब सारे जितने भी सेक्टर्स थे सभी गवर्नमेंट के पास थे, गवर्नमेंट अपने पास रखा था। लेकिन 1991 के बाद क्या हो गया, आफ्टर डिक्लेयरिंग द एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आ गया, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने मतलब बहुत सारे जो जितने सेक्टर्स थे उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग प्राइवेट स्कूल देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब 1991 के बाद ही आए, ठीक है। तो वहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया कि मतलब आप लोग प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। तो जो मतलब पब्लिक सेक्टर्स थे वहाँ पे उनका जो रोल था, रोल मतलब अभी देखो जैसे कि पब्लिक सेक्टर था, उनका मतलब फाइनेंस कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। अगर वहाँ पे वो लोग कुछ लॉसेस फेस कर रहे हैं या फिर उनका जो मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए अगर वो लोग फंड अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस अगर प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, तो दे मे फील डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो उनका जो मतलब प्रोसेस है उनको प्राइवेटाइजेशन भी किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट फॉलो दिस प्रोसेस एंड ऑल्सो as we all know there are only 3 sectors are reserved with the government. गवर्नमेंट के पास ओनली 3 सेक्टर्स ही रिजर्व है जहाँ तक कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक के लिए नहीं है। मे भी इन फ्यूचर में बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन अभी तक के लिए नहीं है। पहला सेक्टर है इंडियन रेलवे, रेलवे कम्प्लीटली गवर्नमेंट का है, ठीक है। और दूसरा है इंडियन डिफेंस सिस्टम, डिफेंस का जो प्रोसेस है वहाँ पे भी कम्प्लीटली गवर्नमेंट का प्रोसेस है। और मतलब और एक भी प्रोसेस है इंडियन पोस्टल या कुछ था। 3 sectors are reserved by the Indian government. Okay. So these are the all important 8 points. It may come as a long question. So prepare it very carefully. The impact of changes in government policy. क्या क्या impact हुआ? जैसे कि first point, ease in entering business. As we all know, due to the liberalization, there is a license system was liberalized. That means the license system was free. So here a person can easily start a business without having many restrictions. Then second point, increase in competition. As there is privatization is allowed, that's why many private companies are entering to India in order to do their business. Many MNCs also came to India in order to start their business. Rapidly changing technological environment. As we all know, if the market becomes competitive, then we have to follow the latest technology. We have to adapt the technological changes which were available in the market. So as per that, after the NEP, new economic policy, the technological environment is completely changed. Then more demanding customers. As before NEP, only few products are available in the market. So it is totally depending on the customers that whether they are buying the product or not. But after declaring of liberalization, globalization and privatization, many MNCs were came to India, so many products are available in the market. So that's why the customers will become more demanding. They are demanding more and more product. अभी जैसे कि हम लोगों का सिचुएशन है, हम लोग मार्केट में जाके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मोबाइल में है, ड्रेस में है, या फिर कोई भी जो भी चीज़ हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ये वाला ऑप्शन कहाँ से आया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ही है। न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब टेक्निक। तो टेक्निक में क्या चेंजेस हो गए? पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट था और ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा। सेलिंग मीन्स पहले द प्रोड्यूसर हैज टू प्रोड्यूस गुड, देन ही इज ट्राइंग टू सेल दोज गुड्स अमंग द कस्टमर्स।
But in marketing concept, first the producer wants to know the need and demand of the customers, then accordingly he produces the goods, then after that he sells the goods. So this is the difference between selling and marketing concept. Emphasis on HRD, human resource employees. They are selecting the quality employees and also giving training to them so that they are able to do their work in an effective manner. Trust on export. They are depending more and more exports so that the business can run effectively, and also earning the foreign exchange with the help of exports. Then change the role of public sector. Only 3 sectors are reserved with the government till nowadays. So that's why government also decided whether the public sectors are done as per their profitability. If they are not able to earn profit, then government may follow disinvestment process. Okay, so this is all about your business environment chapter. The total topic we covered. This is the last part of your business environment. I hope all of you go through all that video. And if you guys are having doubt, feel free to call me. Thank you.